Good morning, everyone. We were doing chapter 4th of class 10th science, carbon and its compounds. And today our topic is the chemical properties of carbon and its compounds. General carbon compounds, which are hydrocarbons, as well as the properties related to the functional groups. So, I told you yesterday to write in homework the chemical properties of hydrocarbons. So I hope you all have written. So tell me, how many of you have done the work? You can also show your work in the camera if you want to show it. Yes, you can write in chat whether you have done the work or not. I gave you the work to complete writing the equations of chemical properties of carbon. I'm asking that how many of you have done that work? Yes? Raise your hands or just tell me by chat whether you have done or not. Who has written? I shared 2 images also, Parv and Dinesh, that in this way you will be writing the equations. आप में से किसने काम कर लिया? इक्वेशंस लिखने को कही थी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की, कार्बन कंपाउंड की, और 2-3 क्वेश्चन जो कल हम सैंपल पेपर से सॉल्व किया था वो भी सॉल्व करने को कहा था. आप में से किसने काम किया है? Who all have done that work? हमारे यहाँ तक हो गया था, ब्लू क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस कर लिया था. Now chemical properties of carbon compounds. Yes, am I audible to you, everyone? Unmute yourself and tell me whether I am audible or not. Yes, ma'am. Okay, so online sessions are already going on. Online classes you are also used to now. Most of the time you also attend some online webinars and all sort of conferences and meetings on online platform. You should know that there is a etiquette that someone is asking you question that you should reply also in online. I'm not only this is not only a one-way communication, this must be a two-way communication, otherwise it is going to end. I will end it right now. If you are not interested in replying me, then it will be over. It is as simple as that. If I'm asking something that reply yes or no, you should tell me. Now, chemical properties of carbon. These are just the reactions which carbon compounds show. So I want any one of you to read from the screen which is shared. You know, in the class also, I make you stand up and I ask you to read in the class. Same way you have to read here also. The screen is being shared to you. Any one of you can read from this 4.3. In this section, we will be studying about some chemical properties. Any one of you can read it. Unmute yourself and read it. Are you getting my point? Chemical properties of carbon compounds. Unmute करके इसे पढ़ना है 4.3 से. In this section we will be studying यहाँ से.
Chemical properties of carbon compounds. In this section, we will be studying about some of the chemical properties of carbon compounds. Since most of the fuels we use are either carbon or its compounds, we shall first study combustion. Combustion. Carbon in all its allotropic forms burns in oxygen to give carbon dioxide, along with the release of heat and light. Most carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning. These are the oxidation reaction that you learned about in the first chapter. Okay, so first reaction which carbon give is combustion reaction, and combustion reaction में आप देख रहे हो कार्बन जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा, combustion is just anything which burns in presence of oxygen to give carbon dioxide with the release of heat, with the release of light, and most carbon compounds do this, and they release large amount of heat, they release large amount of light on burning. Burning is combustion. तो यहाँ पर 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, ये कोई हार्ड इक्वेशन लग रही हैं आपको, और दे आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और आर दे डिफिकल्ट इक्वेशंस? आई डोंट थिंक सो। सब में क्या हो रहा है, सब में कॉमन क्या है, कोई भी कार्बन कंपाउंड है, ये सब कार्बन कंपाउंड हैं, देख रहे हो आप, यहाँ सिर्फ कार्बन है, प्लेन कार्बन, यहाँ पे मीथेन है, यहाँ पे क्या है, इथेनॉल। 3 चीज है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है आपको? सब किसके प्रेजेंस में बर्न हो रहे हैं? सब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहे हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? क्या प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके? CO2 बन रहा है, नीचे वालों में H2O भी बन रहा है, और हीट और लाइट सब में कॉमन है। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया पैटर्न कि कार्बन कंपाउंड होगा तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी? कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, या हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं, HC किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एंड कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, O2 के प्रेजेंस में बर्न होगा, तो क्या रिलीज होगी? तो जनरली क्या रिलीज होगी? CO2 रिलीज होगी, बहुत सारी हीट रिलीज होगी, ठीक है, हीट रिलीज होगी बहुत सारी, और बहुत सारी लाइट रिलीज होगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ ये पॉइंट? यस और नो? सिंपल है या कुछ इसमें तुम्हें दिक्कत है? सिंपल है, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, नाउ एक्टिविटी है, स्पैचुला लेकर उस स्पैचुला में 3 चीजें लेनी है और उसे डायरेक्टली फ्लेम पर गर्म करना है। एक में थोड़ा सा कोयला लेना है, या नेप्थलीन बॉल ले सकते हो, कोयला नहीं ले सकते तो नेप्थलीन बॉल्स ले लिया आपने यहाँ पर। ये वो नेप्थलीन बॉल्स होती है जो जिनको हम उसमें रखते हैं अलमारी में या संदूकों में, ताकि क्या रहे, कीड़े वगैरह ना लगे, तो नेप्थलीन की होती हैं ये। नेप्थलीन बॉल ले लिया, कैम्फर ले लिया, अल्कोहल ले लिया। अब इसमें स्पैचुला में इन्हें बर्न कर रहे हैं, कंबशन करके देख रहे हैं, और फिर एक्टिविटी क्या कह रही है कि नेचर देखो फ्लेम का, कैसे वो बर्न हुआ, कितना स्मोक प्रोड्यूस हुआ भी कि नहीं हुआ। और फिर अब इनके फ्लेम जो जल रहा है स्पैचुला के अंदर, हम जो भी चीज जला रहे हैं अलग अलग जलानी है, नेप्थलीन अलग जलानी है, ठीक है, 3 स्पैचुला यूज होंगे। और दूसरे में क्या जलाना है? कैम्फर जलाना है, कपूर थोड़ा सा। तीसरे में क्या जलाना है? अल्कोहल रखेंगे 2-3 ड्रॉप्स, थोड़ा सा अल्कोहल रख के फ्लेम करेंगे, तो यहाँ पर फ्लेम्स निकलेंगे अलग अलग, ठीक है। अब फिर इन फ्लेम्स के ऊपर कोई मेटल का प्लेट लगा देंगे, उल्टा करके रख देंगे मेटल का प्लेट इन फ्लेम्स के ऊपर, फिर देखेंगे कि ये फ्लेम्स उस मेटल प्लेट को कुछ स्मोक दे से काला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ब्लैक हो रहा है कि नहीं हो रहा मेटल का प्लेट, ये देखना हमको। क्लियर हुआ? क्या एक्टिविटी है? इज इट क्लियर? एक्टिविटी का पोर्शन क्लियर हुआ? Light a Bunsen burner, adjust the air hole base to get different types of flames, presence of smoke, when you get a yellow flame। अब ये एक और एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी हो गई, इसमें हमें फ्लेम देखना था और देखना था कि अगर मेटल रखते हैं तो उसके ऊपर फ्यूम्स जमा होते हैं कि नहीं होते मेटल प्लेट पे।
ये दूसरी एक्टिविटी है, इसमें हम क्या करें, बंसन बर्नर ही रख रहे हैं जो हमारे केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल हैं, और उन बंसन बर्नर में एक रेगुलेटर भी होता है। उस रेगुलेटर को रेगुलेट करके हम इसकी फ्लेम को कभी धीमा कर रहे हैं, धीरे धीरे जल रही है, कभी बहुत कम जल रही है, कभी बहुत तेज जल रही है फ्लेम। तो उसमें देखना है हमें कि क्या कलर चेंज होता है फ्लेम का। अगर हम उसको रेगुलेटर से, एयर होल के रेगुलेटर से कम या ज्यादा करते हैं तो जो फ्लेम होता है कभी ब्लू कभी येलो होता है कि नहीं होता। यस, एक्टिविटी समझ में आई दोनों? एक्टिविटी में क्या पॉइंट्स है, समझ में आए आपको कि नहीं आए? Yes, ma'am. अच्छा, तो दो एक्टिविटी हैं इसमें, तो तीन चम्मच में, तीन अलग स्पैचुलास में, स्पून जैसे ही होते हैं स्पैचुला, लैब में यूज करते हैं, उनमें तीन चीजें गर्म कर मतलब आग लगानी है उनमें। नेपथलीन बॉल्स होंगी, कैम्फर मतलब कपूर होगा, और एक अल्कोहल होगी। इनमें फ्लेम पकड़ा कर देखनी है कि ये कैसे जलते हैं, क्या रंग का फ्लेम देते हैं, और फिर उस फ्लेम के ऊपर एक मेटल का प्लेट के ढक के अलग से दूर से देखना है कि काला जमा होती है कि नहीं होती है, ब्लैकनेस उस पर जमा होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पर देखने के बाद क्या पता चलेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि सैचुरेटेड है तो वो तो क्लीन फ्लेम देगा, जैसे यहाँ इस केस में होगा अल्कोहल, अल्कोहल क्लीन फ्लेम देगी। वाइल अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम देंगे और ब्लैक स्मोक बहुत सारा देंगे, यानी कि जब कैम्फर जलाओगे तब भी काला धुआं आएगा, नेफ्थलीन जलाओगे तब भी आएगा। दिस रिजल्ट इन द सूटी डिपॉजिट। और जो ब्लैक कलर का जो उसके अंदर अनबर्न कार्बन होगा, जो स्मोक के फॉर्म में आएगा, वो मेटल प्लेट पे भी ब्लैक सूटी डिपॉजिट देगा। ठीक है, ब्लैक कलर का डिपॉजिट मेटल प्लेट अगर ऊपर लगाएंगे फ्लेम के तो वो आएगा उस पे। हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन और इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव अ सूटेड फ्लेम। पर यहाँ पर जब हम इस बंसन बर्नर वाली एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो जब हम एयर होल को ब्लॉक कर रहे हैं बंसन बर्नर के, ठीक है, तो उसमें क्योंकि ऑक्सीजन कम जा रही है बंसन बर्नर के एयर होल में, उसको हमने ब्लॉक कर दिया है। नहीं तो यहाँ पर एक छोटा सा एयर होल होता है, उसको ब्लॉक कर दिया है, और फिर यहाँ पर स्टैंड होता है, और उस स्टैंड पे एक वॉल्व जैसा लगा होता है। वॉल्व को घुमाने से उसका जो एयर होल होता है वो छोटा बड़ा किया जा सकता है। उसकी वजह से बंसन बर्नर में से कभी कम फ्लेम निकलती है, अगर कम कम खुला हुआ है, और अगर ज्यादा खुला हुआ है तो तेज फ्लेम। हमारे वालों में रेगुलेटर नहीं है जो हमारे लैब्स हैं, पर नॉर्मली बंसन बर्नर में रेगुलेटर वाला आता है। तो ये बोल रहा है भले ही अब बंसन बर्नर में चल तो क्या रही थी, एलपीजी चल रही थी। एलपीजी है तो ब्यूटेन का वो है, तो वो क्या कहते हैं सैचुरेटेड ही। बट एलपीजी के जगह उसमें जब हमने उसकी सप्लाई कम कर दी, क्या कम कर दी, लिमिट कर दी सप्लाई एयर की, किससे, एयर होल से, तो तब वो भी क्या देने लग गई, सूटी फ्लेम। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम अगर एयर सप्लाई कम कर देते हैं तब भी क्या होता है, ब्लैकनेस या येलोनेस आ जाती है फ्लेम में, वो ब्लू फ्लेम नहीं जल पाता जो कंप्लीट कंबशन में जलता है। ठीक है, तो अब जब हम इसको गैस और केरोसिन वाले स्टोव से यूज देखें, कंपेयर करें, पहले जमाने में जब एलपीजी ज्यादा नहीं होती थी तब केरोसिन गैस एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज होता था, सॉरी केरोसिन ऑयल एज अ डोमेस्टिक यूज होता था। केरोसिन ऑयल से चलने वाले स्टोव्स आते थे, उनसे ही खाना बनाते थे हम लोग किचन में। एंड इनलेट्स ऑफ एयर, उनके भी हमें जो इनलेट्स होते थे एयर के, वो इतने होने चाहिए थे ताकि उसमें ऑक्सीजन सफिशिएंटली आ सके। उसमें भी जो उसके बर्नर्स होते थे उसमें क्या होते थे, होल्स होते थे, उसमें क्या आ सके, एयर आ सके, ताकि अगर एयर नहीं आएगी तो चाहे कोई भी फ्यूल हो, इट विल नॉट बी बर्न बाय द ब्लू फ्लेम। यस माही, यू वांट टू आस्क समथिंग? If anyone have any doubt, can raise the hand and can ask also, unmuting yourself. Ask me. Yes, Mahi, tell me. What do you want to ask?
Yes, ask me. Unmute yourself or write in chat whatever you feel comfortable with. आप चैट में लिख दो अगर आपको नहीं बोलना तो. मैम चैट ऑफ है. Yes. मैम चैट इज ऑफ. Okay. Next person, maybe some network issue is there. So next person will read from here. Mixture is burned to give clean blue flame. तो केरोसिन स्टोव के अगर हम पोर्स क्लीन करेंगे, इवन हम अपनी गैस जो अब यूज करते हैं, जो किचन में गैस यूज करती हैं मम्मी, वो क्या करती हैं, वो भी टाइम टाइम पर उनके बर्नर्स को क्लीन करती हैं, उनके पोर्स को ओपन करती हैं, क्योंकि चारकोल या अनबर्न कार्बन उसके अंदर जमा हो जाता है, बर्नर्स गंदे हो जाते हैं, तो उसमें भी ब्लू फ्लेम सही से नहीं जल पाता. जब येलो येलो गैस लगने लग जाए, इसका मतलब उसे सफाई चाहिए, ये क्लीन करना जरूरी है. नहीं तो वो बर्तनों को भी नीचे से क्या करने लगेगी, गैस पे बर्तन रखेंगे, बर्तन भी नीचे से क्या होने लगेंगे, काले होने लगेंगे. समझ में आ रहा है? क्योंकि एयर होल्स ब्लॉक्ड हो गए हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एवरीवन? Kunal, Priyanshi, are you getting my point? के पोर्स क्लीन होना जरूरी है. जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो फॉर बर्निंग द फ्यूल, देयर एयर होल शुड बी क्लियर, क्योंकि कंबशन तब तक नहीं हो सकती है जब तक तीन चीज नहीं हो. क्या? एक फ्यूल, एक ऑक्सीजन और एक इग्निशन टेम्परेचर. मतलब हम उसको सबसे पहले स्पार्क तो देते ही हैं लाइटर से गैस को. तब ये तीनों चीजें होती हैं, तभी कुछ चीज बर्न में आती है, लाइट हो सकती है. और जब हम फ्यूल्स को, चाहे हम अपने व्हीकल्स में जो फ्यूल डाल रहे हैं पेट्रोल, चाहे हम कोई थर्मल पावर प्लांट में कोल को बर्न कर रहे हैं, इन सब के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर के भी कंपाउंड्स होते हैं, पेट्रोल के अंदर और कोल के अंदर. तो जब ये कंबशन करते हैं तो इनकी ऑक्साइड्स भी बनती हैं, सल्फर की ऑक्साइड्स बनती हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बनती हैं, जो एक पॉल्यूटेंट्स की तरह काम करती हैं. इन्वायरमेंट को ये क्या करती हैं? पोल्यूट करती है. क्लियर हुआ बेटा? इज इट क्लियर? यस मैम. Okay, so why do substances burn with or without flame? Anyone wants to read this? Do you know? Because any from anywhere your in exam can come. Yellow boxes are also important. So read. Anyone can read from the class? Varun, Shrish, you can read. Why do Mani. substances burn with or without a flame? Have you ever observed either a coal or a wood fire? If not, then next time you get a chance, take close note of what happens when the wood or coal start to burn. You have seen above that a candle or the LPG in the gas stove burns with a flame. However, you will observe the coal or charcoal in an angeethi sometimes just glows red and gives out heat without a flame. This is because a flame is only produced when gaseous substances burn. When wood or charcoal is ignited, the volatile substances present vaporize and burn with a flame in the beginning. ओके, तो हमने कभी कोयला जलता हुआ देखा है. इन्होंने ये बोला है कि अगर आपने कभी कोयला जलता हुआ देखा होगा, तो फर्स्टली आई वांट टू आस्क, क्या सच में आप में से किसी बच्चे ने कोयले को जलता हुआ देखा है? कभी देखा है? आई एम श्योर देखा होगा, क्योंकि ये ऐसा है कि जो सर्दियों में तो सभी लोग सोचते हैं कि चाहे हम लकड़ियों से थोड़ा सा बॉन फायर कर लें, या तो हम कोल को जला लें अगर हमारे पास कोल है तो. ठीक है, तो कैसे जलता है वो? हाउ इट बर्न? इट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम. वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता कोल. ये सिर्फ एक कह सकते हैं अंगीठी या किसी में भी ग्लोज रेड हॉट कलर का ये लपट किससे भरा हुआ, और इसके अंदर हीट होती है पर विदाउट फ्लेम होती है.
This is because flame is not only produced when gaseous. फ्लेम तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब जो फ्यूल है वो गैसियस फॉर्म में आए और तब वो गैस में जल रहा है, तब कोई भी चीज क्या बनती है, ज्वाला बनती है, फ्लेम बनती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। अगर एयर में वो जलती नहीं है, एयर में वो गैस के फॉर्म में नहीं आती, यानी वेपर्स जलते हैं। किसी भी फ्यूल के क्या जलते हैं, एक्चुअली में वेपर्स जलते हैं। पर चारकोल इग्नाइट होता है, द वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपोराइजेस एंड बर्न विद अ फ्लेम। पर वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, वो ही फ्लेम से जल सकता है। अल्यूमिनस फ्लेम जो लाइट भी प्रोड्यूस करता है, तो ये हमें तब दिखती है व्हेन एटम्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड स्टार्ट्स टू ग्लो। गैस के सब्सटेंस ग्लो करने लगते हैं जलने के बाद। The color produced by each element is a characteristic property of the element। और हर एलिमेंट, हमने इससे पहले मेटल वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बोला था कुछ मेटल के पीसीज लो, उन्हें डायरेक्टली फ्लेम लगाओ तो कुछ तो व्हाइट फ्लेम से, जैसे मैग्नीशियम रिबन व्हाइट फ्लेम, डेजलिंग फ्लेम देता है मैग्नीशियम, एंड देन कुछ और ऐसे होंगे जो येलो फ्लेम देंगे, कुछ ब्लूइश भी दे सकते हैं, ग्रीनिश भी दे सकते हैं। तो हर एलिमेंट का वही पार्ट यहाँ बता रहे हैं, हर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम आती है। एंड ट्राई टू हीट अ कॉपर वायर। कॉपर वायर को आप जलाओगे गैस के स्टोव के फ्लेम में, तो ऑब्जर्व करो उसका क्या कलर आता है। हैव यू सीन इनकम्प्लीट कंबशन गिव अ सूट विच इज कार्बन। इनकम्प्लीट कंबशन से एक सब्सटेंस बनता है जिसे सूट कहते हैं, SOOT, और जो एक्चुअली में कार्बन होती है। और ऑन दिस बेसिस यू एट्रीब्यूट येलो कलर टू अ कैंडल फ्लेम। ठीक है, तो हम कैंडल भी काफी सूट देती है, तो वो भी येलो फ्लेम देती है। Now formation of coal and petroleum, another person, now another student will read it. Yes, a different student, I want any other one to read it. Anyone can read, want to read? Karthik, Anshika, Riya. What is formation of coal and petroleum? How coal and petroleum are formed? What is the other name of coal and petroleum? They are also called, which kind of fuels are they? Which kind of fuels are they? Have you heard this term? Last word of this paragraph. Have you heard this term? कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं कोल एंड पेट्रोलियम? इसमें लाइन में लास्ट में क्या दिखा है, फॉसिल फ्यूल्स। कैसे बनते हैं? बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस से बने हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द बायोमास। बायोमास मतलब जो वंस कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही जब दब गए अर्थ के फॉर्मेशन के वक्त, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी, बाद में मिलियन ईयर्स बाद क्या बन गए, फॉसिल फ्यूल बन गए। अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शंस के बाद जब अर्थ क्रश हुई तब, तो उसकी लेयर्स में प्रेस हो गए, दब गए, मर गए और धीरे धीरे डिकम्पोज हुए हैं ऑयल में, कोल में, ऑयल में, गैस में। वही नेचुरल गैस बनी है, वही कोल बने हैं, वही ऑयल बने हैं। एंड टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी, ऐसे छोटे छोटे एनिमल जो समुद्र में मरे थे, देयर बॉडी सैंक टू द सी बेड, वो समुद्र में ही दफन हो गए और वहां पर उन्होंने सिल्ट से वो पूरे कवर हो गए। बैक्टीरिया ने उनके डेड रिमेन को टर्न कर दिया ऑयल और गैस में, हाई प्रेशर के अंदर, एंड दे बीन सब्जेक्टेड टू, हाई प्रेशर में सब्जेक्ट हुए हैं वो, तब जाके वो पेट्रोल बने हैं। द सिल्ट was slowly compressed into rock, silk rock बन गई है, and the oil and the gas seeped into the porous part of the rock and got trapped like water in a sponge। और जो ऑयल है बीच बीच में स्पॉन्ज, जैसे स्पॉन्ज में पानी भर जाता है वैसे ऑयल भर गया उनके रॉक्स के अंदर। कैन यू गेस व्हाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं? फॉसिल एक्चुअली में क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेड रिमेन्स है, तो ऐसे डेड, ये जो सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं ये डेड रिमेन्स से ही बने हैं। अभी आपने देखा कि जो प्लांट लाइफ है और जो एनिमल लाइफ है उनकी डेड बॉडी सैंक हो गई हैं, समुद्र में भी सैंक हुई हैं, पहाड़ों में भी दब गई हैं, जमीन के अंदर भी दब गई हैं वॉल्केनो के बाद, तो उसी से बने हैं, इस वजह से फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट?
पोरस मीन्स होता है पोर्स, समथिंग विच इज हैविंग पोर्स इज कॉल्ड पोरस। स्पॉन्ज पोरस होती है, इन्होंने स्पॉन्ज का एग्जांपल बोला है ना। स्पॉन्ज के अंदर जैसे ब्रेड का पीस भी बीच बीच में से कैसा होता है, आपने देखा है, पोरस होता है। CO2 बनने की वजह से उसके अंदर बहुत सारे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। हैव यू सीन समथिंग लाइक दैट इज पोरस। Oxidation, next reaction, yes Kunal, read it. Oxidation reaction, Shrish, Kunal. What is the oxidation reaction and what is its activity? Read करो, कोई भी एक बच्चा read करो. Yes, Shrish, Kunal, anyone can read. Are you there or not on your videos? आपको पता है आपके 2 पीरियड हैं और हमको आज केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश करनी थी on your video. Yes, I'm asking you to do something again. वही चीज मेरे को दोबारा से बोलनी पड़ेगी कि मैं आपको जब बोल रही हूँ तो you should reply. Kunal, Shrish, any one of you can read it. कार्तिक, कोई भी पढ़ दो बेटा. अंशिका, माही, प्रियांशी, प्रिया, anyone can Yes, read. okay, ma'am. Ma'am, ये activity 4.5. हाँ पढ़ो. Take about 3 ml of ethanol in a test tube and warm it gently in the water bath. Add a 5% solution of alkaline potassium permanganate drop by drop to the solution. Does the color of potassium permanganate precedes when it is added initially? Why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? You have तो learned. हमको ये बताना है कि हमने एक पहले तो ट्राइपॉड लगाना है, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया हमने, फिर हमने एक बंसन बर्नर की मदद से इसको फ्लेम दे रहे हैं, ठीक है. वी आर गिविंग फ्लेम टू द बंसन फ्रॉम द बंसन बर्नर टू द ऊपर एक वाटर बाथ रखा है हमने, यानी वाटर बाथ एक हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर के अंदर हम लोग पानी रखते हैं और पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, पानी को गर्म कर रहे हैं. वी आर हीटिंग द वाटर, वी आर बॉइलिंग द वाटर इन इट. पर इस वाटर बाथ को हमने सेट इसीलिए किया है ताकि हम इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब रख सके और इनडायरेक्ट हीट कर सके किसको, अल्कोहल को. इस टेस्ट ट्यूब में क्या रखी हुई है हमने, इन दिस टेस्ट ट्यूब वी हैव पुट अल्कोहल. इसके अंदर हमने अल्कोहल रखी है और हम इसे इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं अल्कोहल को. 5% की सोल्यूशन, टेक अबाउट 3 ml इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट इन जेंटली इन अ वाटर बाथ. थोड़ा सा वार्म किया है बस. वी हैव वार्म्ड दिस इन वाटर बाथ. इसको बोलते हैं, इस तरह इनडायरेक्ट हीट करने को बोलते हैं वाटर बाथ में हीट करना. वाटर बाथ में हीट करा हमने इथेनॉल को, इथेनॉल ली थी हमने थोड़ी सी, ठीक है, 3 ml ली थी, थोड़ी सी मतलब 3 ml. देन उसके बाद 5% सोल्यूशन हमने उसमें ऐड किया अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का, इस सॉल्ट का, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का. इसके अंदर मैंने ये पिंकिश कलर का ही सॉल्ट होता है तो मैं इसमें पिंकिश कलर का थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल देती हूँ. पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया इसमें एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल दिया. एंड देन डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन इट इज एडेड इनिशियली? And what does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? तो इसको डालने के बाद जैसे ही इसे डाला गया तो क्या इसका कलर डिसअपियर होगा या फिर अगर ज्यादा एक्सेस में डालेंगे तो डिसअपियर नहीं, पहले शुरुआत में डालने पे डिसअपियर होगा और ज्यादा और डालते रहेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप तो नहीं होगा, ठीक है. देन इट विल नॉट, क्योंकि वो सैचुरेट हो जाएगा.
तो एक्चुअली में पोटेशियम परमैंगनेट क्या कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट जो है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, व्हाट इज इट डूइंग, इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो अल्कलाइन KMnO4 किसकी तरह काम करता है, इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन अगर आपने कल लिखी होगी तो यू नो दैट ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप फर्स्ट चैप्टर में भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ चुके हो। एंड कार्बन कंपाउंड्स इजीली क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कंबशन करवाने पर। एंड इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शंस विद अल्कोहल्स आल्सो। व्हेन अल्कोहल्स आर सब्जेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे कि ये है अल्कलाइन KMnO4, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो पहला रिएक्शन है ये अल्कोहल का, कि जब भी अल्कोहल को किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप हीट करोगे, गर्म करोगे थोड़ा सा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। मैं अगर इथेनॉल को, कहने का मतलब है 2 कार्बन वाली अल्कोहल को एसिडाइड अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करूं, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड ओनली। उतने ही कार्बन का वो कौन सा बन जाएगा, वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उतने ही कार्बन का। अब इथेनॉल 2 कार्बन की अल्कोहल थी, इथेनोइक एसिड बन गया 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बन नंबर चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है, सेम कार्बन कोरस्पॉन्डिंग कार्बन का एसिड बन जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन देख रहे हो आप, यू कैन सी द इक्वेशन, इज इट क्लियर? यस मैम। तो यहाँ इथेनॉल दे रखी है CH3CH2OH, यहाँ पर इवन 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखे हैं, एक अल्कलाइन KMnO4, एक एसिडिफाइड K2Cr2O7, यानी पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी नॉट पोटेशियम परमैंगनेट तो ऊपर ही है भाई, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, क्रोमेट है, ठीक है, क्रोमेट आयन बोलते हैं इसको। Cr2O7 को क्या बोलते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, Cr2O7 को डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, चाहे अल्कलाइन KMnO4 हो, पोटेशियम परमैंगनेट हो, ये मैग्नेस है, मैग्नस ग्रुप है, और ऑक्सीजन के साथ 4 है, तो परमैंगनेट बोलते हैं इसे, ठीक है, मैग्नस से बना है मैग्नेट आयन, मैग्नीज Mn, पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 potassium dichromate, this is what, these both are oxidizing agents, clear हुआ? We see some substances are capable of adding oxygen to others, these substances are known as oxidizing agents, ठीक है। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे substances होते हैं जो कि ऑक्सीजन दूसरे substances में जोड़ सकते हैं और इन्हीं को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, क्लियर हो गया? यस इसमें कौन से 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दे रखा है, एक अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है और एक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है। 2 आपसे ये 1 वर्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, राइट द नेम्स ऑफ द 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्लियर? एंड व्हाट इज देयर फंक्शन, ऑक्सीडाइजिंग द अल्कोहल्स टू एसिड्स, दे ऑक्सीडाइज अल्कोहल टू एसिड्स बाय एडिंग द ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल। इस वाले मटेरियल में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, हाइड्रोजन के रिमूवल को और ऑक्सीजन के एडिशन को क्या कहते हैं, COH में कन्वर्ट हो गया है, ये यहाँ से हाइड्रोजन हट गया है और एक ऑक्सीजन जुड़ गई है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो गई ना, अल्कोहल से क्या बन गई, इथेनोइक एसिड, क्लियर हो गया? मैम एक बार जो आपने ये बताया था ना CR07 वाला क्या चीज, यहाँ से पूरा हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ पे उसकी जगह ऑक्सीजन लग रहा है, इसी को कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अल्कलाइन KMnO4 का नाम है ये, K से पोटेशियम, M से मैग्नेट आयन, O भी तो जुड़ा है इसमें ऑक्सीजन, तो उससे मैग्नेट आयन है, पोटेशियम परमैंगनेट। और ये एसिडिफाइड K2Cr2 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्रोमेट आयन होता है। ओके मैम। एडिशन रिएक्शन बहुत सिंपल है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एक नई तरह के कैटलिस्ट के साथ ट्रीट करा देंगे, जैसे कि पैलेडियम और निकल, जिनकी वजह से उसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ जाएगी
ऊपर वाले रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन है ये। ऊपर वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन हटके ऑक्सीजन जुड़ रही थी, यहाँ पर ऑक्सीजन से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड हटके डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और जो वैलेंसी यहाँ पे रिमूव फ्री हुई है दोनों कार्बन की, वो वैलेंसी से एक एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये जो कार्बन है इनका एक बॉन्ड फ्री हो गया, वन बॉन्ड इज रिमूव फ्री, एक ही सिंगल ही रहेगा इसमें अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बनाने की प्रोसेस है ये। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में गिव्स क्या देते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट रिएक्शन कॉल्ड? What is that reaction called? It can be called as reduction as well as it can be called as addition reaction. क्या ऐड हो रही है इसमें? क्या ऐड हो रही है एक्चुअली में इसमें? हाइड्रोजन गैस किसकी प्रेजेंस में हो रही है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कौन है कैटलिस्ट? पैलेडियम और निकल। पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है। एरो के ऊपर लिखना पड़ता है, ठीक है? आपने इक्वेशन लिख दी, बिल्कुल सही लिख दी, निकल और पैलेडियम की छोड़ दिया तो उससे मार्क्स कटेंगे, क्योंकि वो तो मेन है, उसके प्रेजेंस में होगी वरना नहीं होगी। ठीक है? तो साइंस फैक्ट्स पे काम करती है, फैक्ट्स नहीं याद तो यानी कि नहीं याद, आपको नहीं पता, बस सिंपल। तो ये पूरी चीजें लिखनी होती हैं। यहाँ पर आप लिखोगे डबल बॉन्ड के साथ, आप देख रहे हो यहाँ पर एक आपका हाइड्रोकार्बन है जो कि कैसा हाइड्रोकार्बन है? एन अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड, ड्रॉनिक चुप हो जाओ, अनसैचुरेटेड। और उसके अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जुड़ी है, हाइड्रोजन जुड़ गई है और उससे क्या बन गया है? एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया है। क्या बन गया है? सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर हो गया? यस मैम। This reaction is commonly used in hydrogenation of vegetable oils using a nickel catalyst. Vegetable oils generally having a long unsaturated hydrocarbon chains, while animal fats have saturated hydrocarbon chains. ये रिएक्शन का जनरल यूज, कॉमन यूज कहाँ पर है? इस रिएक्शन का कॉमन यूज है वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन करने में। तो ये इस तरह से भी आता है एग्जाम में कि विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं? जनरली अनसैचुरेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हम इस कंपाउंड को वेजिटेबल ऑयल के फॉर्म में भी आ सकता है एग्जाम में। ये वेजिटेबल ऑयल है, निकल कैटलिस्ट है, यहाँ पर डैश लगा दिया, ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसे? तो वेजिटेबल ऑयल्स आर जनरली अनसैचुरेटेड व्हाइल एनिमल फैट्स आर जनरली सैचुरेटेड। तो वेजिटेबल ऑयल से उनको उनके अनसैचुरेशन को हटाकर सैचुरेटेड ऑयल बनाने में काम आते हैं। ये किस में काम आते हैं? सैचुरेटेड ऑयल्स बनाने में अनसैचुरेशन हट जाती है उनकी, डबल बॉन्ड्स हट जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एडिशन एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन। हेल्दी, कुछ वेजिटेबल ऑयल्स हेल्दी होते हैं, एनिमल फैट जनरली सैचुरेटेड होने की वजह से हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग, इसीलिए सब सरसों का तेल यूज करते हैं, क्योंकि सरसों का तेल वो है प्लांट ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, सरसों के प्लांट से आता है, मस्टर्ड से। तो मस्टर्ड ऑयल इज हेल्दी फॉर कुकिंग बिकॉज वो अनसैचुरेटेड होता है, हेल्दी होता है हार्ट के लिए। क्लियर हो गया? क्योंकि एनिमल फैट्स हेल्दी नहीं होते हार्ट के लिए। यस मैम। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट हो गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको पढ़ेगा कोई एक बच्चा? एनीवन विल रीड दिस? Saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are interact in the presence of most reagents. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. Chlorine can replace the hydrogen atoms one by one. It is called a substitution reaction because one type of atom or a group of atoms takes the place of another. A number of products are usually formed with a higher homologous of alkanes. ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फेयरली अनरिएक्टिव और इनर्ट नेचर में होते हैं। बहुत सारे रिएजेंट्स से वो कोई रिएक्शन नहीं शो करते हैं सैचुरेटेड वाले, बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है?
क्यों लिखा है यहाँ पर ऐसा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनरिएक्टिव है, इनर्ट है? क्यों? हाँ, क्योंकि क्यों होगा ये? क्लोरीन में वो ऐड हो जाता है हाइड्रोकार्बन्स में, बहुत मतलब एक वो तो जल्दी रिएक्शन होती है। आगे वाली लाइन है, ये तो आगे वाली लाइन है। मैं पूछ रही हूँ, ये क्वेश्चन आ गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फेयरली अनरिएक्टिव एंड इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ रिएजेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। फिर क्या करोगे, क्या रीजन दोगे इसका? व्हाट कैन बी द रीजन? ये बोल रहा है सैचुरेटेड है, जैसे मीथेन है, ठीक है, मीथेन सैचुरेटेड है, तो मीथेन में वो अनरिएक्टिव क्यों है? उसको सनलाइट की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्लोरीन से रिएक्शन तभी करेगी जब सनलाइट होगा, वरना नहीं करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? बिकॉज इसमें ऑलरेडी इस कार्बन की वैलेंसी शेयरिंग में क्या है, फुलफिल्ड हो रखी है। 4 हाइड्रोजन से ऑलरेडी ये स्टेबल कंपाउंड बन ही रखा है इसका, ठीक है। सैचुरेशन का मतलब तो क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड से ऑलरेडी अपना कंपाउंड बना रखा है, और इस वजह से उसको कोई जरूरत ही नहीं है किसी और गैस के साथ एनवायरनमेंट में रिएक्ट करने की। पर हाउएवर हम जब स्पेशल कंडीशंस देते हैं तो हाउ दे आर मेड रिएक्टिव देन? अगर क्वेश्चन आ जाए अगर वो अनरिएक्टिव होते हैं तो हम उन्हें रिएक्टिव कैसे बनाते हैं, तब आपका ये लाइन आएगा नेक्स्ट वाला कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन कैन बी एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स in a fast reaction and chlorine can replace hydrogen atoms one by one। और क्लोरीन बहुत आराम से जुड़ जाएगी मीथेन के साथ अगर हम सनलाइट में से करवा रहे हैं तो, और वो एक के बाद एक सारे हाइड्रोजन्स को भी रिप्लेस कर सकती है और कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकती है। इट कैन मेक CCl4 ऑल्सो, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम पहले तो यहाँ तो सिर्फ एक ही क्लोरीन को रिप्लेस करके दिखाया है और HCl रिलीज करवाया है, वरना अगर हम क्लोरीन को आगे और भी एक्सपोज करते रहें तो बहुत जल्दी वो सारे हाइड्रोजन्स को 1 by 1 रिप्लेस कर सकती है। एंड इसी तरह से क्लोरीन से हाइड्रोजन का रिप्लेस हुआ क्योंकि क्लोरीन के एक एटम ने हाइड्रोजन को यहाँ पर CH3 कर दिया, ठीक है, CH3Cl कर दिया, खुद उसकी जगह ले ली और हाइड्रोजन को हटाकर HCl कर दिया। तो इसीलिए इस तरह का रिएक्शन क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद है फर्स्ट चैप्टर का, उस टाइप का ही कुछ है ये। क्लोरीन ने इसको हाइड्रोजन को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया है। वो डिस्प्लेसमेंट था और ये सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ होमोलॉग्स बन सकते हैं। A number of products are usually formed with the higher homologs of alkanes। ऐसे सब्स्टिट्यूट करा के बहुत सारे हम आइसोमर्स भी बना सकते हैं। कल एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था आइसोमर्स बनाने का ब्रोमीन ग्रुप का। क्या चीज? समझ नहीं आ रहा, मे बी द वॉइस इज ब्रेकिंग because of internet. Now these two questions, you can write your query in your chat में लिख दो query क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। क्वेश्चन दिया हुआ है why is the conversion of ethanol to ethanoic acid and oxidation reaction। तो इसका आंसर क्या होगा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है? Why is it oxidation reaction? तो रीजन क्या दोगे आप? What you reaction, what reason will you give? जल्दी बताओ। Why the conversion of ethanol to ethanoic acid is called oxidation? Ma'am, because oxygen is added in ethanoic acid. Because oxygen is added in ethanol। ethanol में क्या जुड़ गई थी? ऑक्सीजन जुड़ गई थी एंड हाइड्रोजन वाज रिमूव्ड। और क्या रिमूव हो गया था? हाइड्रोजन रिमूव हो गया था, और इसी वजह से ऑक्सीजन जुड़ने की वजह से ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो कहलाता है। और एक और चीज बतानी पड़ेगी, एंड इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको भूलना नहीं है। मैंने क्या कहा था, एरो पे अगर कुछ नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। यू हैव टू राइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ, तो यहाँ पे आप इक्वेशन भी दोगे, यहाँ पे आप ये भी बताओगे ऑक्सीजन जुड़ी है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोई भी एक एग्जांपल भी लिखोगे, KMnO4 या K2Cr2O7। क्लियर हो गया? कुछ भी चीज स्किप नहीं करनी है आपको। ऐसे इतनी कोई जल्दी नहीं है आपको कि आप आधी अधूरी नॉलेज बताकर और सोचो कि मैंने तो पूरा अच्छा पेपर कर दिया, मेरे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। इतनी कोई जल्दी नहीं है, वहां पे सब चीज बतानी है उसी टाइम में, उसी लिमिटेड टाइम में आपको सब चीज बतानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? ऑक्सीजन और इथाइन का मिक्सचर वेल्डिंग के लिए यूज होता है, क्या तुम रीजन बता सकते हो इथाइन और एयर का मिक्सचर क्यों नहीं यूज होता इसकी जगह? बताओ क्या रीजन होना चाहिए? इथाइन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यू मतलब करके तभी वेल्डिंग के लिए काम कर सकते हैं, एयर से नहीं कर सकते इथाइन को ट्रीट। क्या रीजन हो सकता है इसका? व्हाट रीजन कैन यू गिव? Highly reactive atom replace another atom. Yes. And even यहाँ एयर में कोई और गैसेस भी होंगी, जैसे एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, हाइड्रोजन भी होगा। और आपको पता है अगर इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वो क्या कर सकती है, ये अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो सकती है। तो वो क्या करेगी, इट विल नॉट गिव द देन इट विल नॉट गिव द रिएक्शन, हीट प्रोड्यूस नहीं करेगी, प्रॉपर हीट और लाइट। एयर में यस, एयर में हार्मफुल गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। हाँ उनसे भी रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन पे। वैसे थोड़ा और सर्च करना, सर्च द रीजंस फॉर दिस क्वेश्चन, सम मोर रीजंस। ओके, एक रीजन तो हम क्योंकि अभी ऊपर के उससे इक्वेशन से रिलेट कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि गैसेस में और भी गैसेस होती हैं उनसे रिएक्ट कर सकती है, जैसे कि हाइड्रोजन। और अनसैचुरेटेड है इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड वाली है, तो वो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकती है। बट स्टिल यू ऑल्सो हैव टू सर्च योर ओन रीजंस। ठीक है, and I will also share it. Now some important carbon compounds, ethanol and ethanoic acid, इनकी भी कुछ properties हैं. There are properties of these also. So I want any one of you will read. Vanshika, Riya Rajput, Akansha, anyone can read this paragraph. 4.4, some important carbon compounds, ethanol and ethanoic acid. Many carbon compounds are valuable to us, but here we shall study the properties of 2 commercially important compounds, ethanol and ethanoic acid. Next page. तो कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को ज्यादा पढ़ा जाता है। हमारे पास बहुत कार्बन कंपाउंड्स है, पर इन दोनों को ही हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं। अब आगे का पैराग्राफ आप रीड करेंगे, मैं आगे का पैराग्राफ सॉल्व कर रही हूँ। Properties of ethanol. Ethanol is a liquid at room temperature, referred to table 4.1 for melting and boiling points of ethanol. Ethanol is commonly called as is active ingredient or alcohol. In addition, because it is a good solvent, it is also used in medicines such as tincture, iodine, cough syrups, and many tonics. Ethanol is also soluble in water in all proportions. Consumption of small quantities of dilute ethanol causes drunkenness. Even though this practice is condemned, it is socially widespread practice. However, intake of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal. Also, long-term consumption of alcohol leads to many health problems. Reactions of ethanol. First reaction. You have read this properties of ethanol and इसमें हमने देख लिया इथेनॉल लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, आपने देखा भी होगा, वाइट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, वाइट बॉटल प्लास्टिक की बॉटल में उसे रखते हैं क्योंकि ये एयर में भी उड़ सकती है, बिकॉज इट इज वॉलेटाइल गैसेस में इसके वेपर्स बन जाते हैं रूम टेम्परेचर पे ही। एंड इथेनॉल कॉमनली अल्कोहल भी कहा जाता है इसको, एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स की।
जो भी ऐसी ड्रिंक बेवरेजेस होती हैं, जो हार्ड ड्रिंक्स होती हैं, विस्की, रम, बियर, इन सब में अल्कोहल्स होती हैं। एंड इन एडिशन बिकॉज इट इज गुड सॉल्वेंट है ये, तो ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गया, ये अल्कोहल है, जनरल अल्कोहल और ड्रिंक्स में भी पाई जाती है। एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पे इसके रहते हैं और ये वेपोराइज भी हो सकती है। इट इज वॉलेटाइल, अगर इसका ढक्कन खुला छोड़ देंगे तो ये पूरा उड़ भी जाएगी। इट इज वॉलेटाइल, इट विल बी वेपोराइज्ड। ठीक है, तो इथेनॉल लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, इट कैन गेट वेपोराइज्ड। देन बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन। मेडिसिन में भी कफ सिरप्स वगैरह, ठीक है, आप कफ सिरप्स पीते हो, टिंचर आयोडीन आपका जो बीटाडीन सोल्यूशन होती है, ठीक है, जब कुछ कट हो जाता है, कुछ छिल जाता है पैर वगैरह, हाथ में, तो आप ऊपर से जो लगाते हो, उससे धोते हो जिसको, वुंड को, टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक। इसमें भी अल्कोहल का मिक्सचर होता है, थोड़ा सा आयोडीन होता है इसमें, ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। तो दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अल्कोहल की प्रॉपर्टीज हैं ये, क्योंकि ये इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को और बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व कर सकती है। तो अगर मेम्ब्रेन से डिसॉल्व हो जाएंगी तो कोई भी इंफेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसीलिए इससे घाव धोए, ताकि कोई छिले थे तो मिट्टी से रगड़ खाई होगी या किसी भी ऐसी चीज से रगड़ खाई होगी आपकी बॉडी में, तभी तो छिले होंगे आपके, तभी चोट लगी होगी। तो इस वजह से टिंचर आयोडीन से धोते हैं, ताकि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो साफ हो जाए, मर जाए। एंड कफ सिरप्स में होता है, कफ सिरप्स में थोड़ा डलता है, ये टॉनिक्स में डलता है इथेनॉल, क्योंकि जब हम बीमार हो रहे होते हैं तो हमें, हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, हमें रेस्ट की जरूरत होती है, ताकि हमारी थोड़ी सी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए, बॉडी को एनर्जी, बॉडी की एनर्जी बच जाए। इस वजह से कफ सिरप्स वगैरह में होती है। इथेनॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, पानी में सारे प्रोपोर्शंस में सोल्यूबल होती है इथेनॉल। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, थोड़ा भी अगर हमने उसको डाइल्यूट करके भी पी लिया तब भी उसमें हमें ड्रंकनेस लगेगी, नशा होगा उसका। एंड थोड़ी भी क्वांटिटी लेने से भी उसका नशा होता है। एंड इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, ये प्रैक्टिस वो होती है, मना होती है, प्रोहिबिटेड होती है, सोसाइटी में ये सही नहीं होता। इतना मना करने के बाद भी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि लोग पीकर इधर उधर स्टोर करते रहते हैं। एंड इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लीथल। अगर प्योर किसने पी ली तो प्योर तो बहुत ज्यादा लीथल होती है, बिकॉज ये सारा लीवर, हमारे लीवर पे असर करती है, किडनीज पे असर करती है, तो हमारे ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं। और एक बार लीवर किडनी अगर खराब हो गया तो फिर हमें कोई भी चीज का ना स्वाद आएगा खाने पीने का, हमारी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी चीज, क्योंकि लीवर हमारा बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। और किडनी भी खराब होगी तो वेस्ट रिमूव होएगा, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म, अगर बहुत लंबे समय से अल्कोहल पी रहे हैं तो बहुत ज्यादा हेल्थ खराब हो सकती है बाद में जाकर। ठीक है, ऑर्गन्स बिल्कुल ही कंप्लीटली भी डैमेज हो सकते हैं, ट्रांसप्लांट की भी नौबत बढ़ सकती है। तो ये सब है अल्कोहल के बैड इफेक्ट्स। क्लियर हो गए? प्रॉपर्टीज ऑफ बैड इफेक्ट्स दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब नाउ रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड एक्टिविटी। हु विल रीड दिस एक्टिविटी? नेक्स्ट पर्सन विल रीड, anyone in the class can read? Yes, ma'am. Activity 4.6. Drop a small piece of sodium about the size of couple of grains of rice into ethanol. What do you observe? How will you test the gas involved? Yes. So इसमें क्या बताया है, छोटा सा पीस सोडियम का, आपको सिर्फ एक दाने के बराबर साइज का सोडियम आपको उसका इथेनॉल में डालना है, एब्सोल्यूट इथेनॉल में डालना है। और आपको क्या ऑब्जर्व होता है आप ये देखो और बताओगे। हाउ विल यू टेस्ट द गैस? एक गैस बनेगी, उसको आप टेस्ट कैसे करोगे? तो अब यहाँ पे वही रिएक्शन दे रखा है, सोडियम को इथेनॉल में डालने से सोडियम इथॉक्साइड बन जाता है। ठीक है, एक ऑक्साइड बनता है सोडियम का, सोडियम इथॉक्साइड। और कौन सी गैस इवॉल्व होती है अब तुम जानो, जब सोडियम हाइड्रोजन की जगह ले रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप तो वहीं का वहीं बना हुआ है, सोडियम जाकर किसकी जगह ले रहा है? हाइड्रोजन की जगह ले रहा है। तो वहां से, क्योंकि 2 सोडियम्स हैं इक्वेशन में, आप जहाँ साइड में देखोगे 2 सोडियम है, 2 ही इथेनॉल है, तो यहाँ पे भी 2 ही हाइड्रोजन होंगे। जब 2 हाइड्रोजन होंगे
तो 2 हाइड्रोजन 2 Na यहाँ पर आके लग जाएंगे। ये पहले 2CH3CH2OH था, अभी हो जाएगा 2CH3CH2ONA। तो मतलब 2 हाइड्रोजन हटके 2 Na लग गए और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इस हाइड्रोजन गैस को सही में टेस्ट करने का तरीका आपको पता ही है, फर्स्ट चैप्टर में आप जानते हो कि हाइड्रोजन बर्न विद अ पॉप साउंड। अब कोई बर्निंग मैच स्टिक को उसके पास लाओगे तो अगर ये पॉप साउंड से बुझती है या कैंडल बुझती है तो दैट मीन्स वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी यहाँ से और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। 2 Na है, दोनों Na यहाँ आ जाएंगे, आगे 2 लगाई हुआ है तो बैलेंस है ये इक्वेशन, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स रिमूव होके अलग हो गई। क्लियर? सिंपल रिएक्शंस हैं, इस चैप्टर की रिएक्शंस बहुत सिंपल है। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Alcohol reacts with sodium leading to evolution of hydrogen, and with ethanol the other product sodium methoxide is formed. Can you recall which other substances produces hydrogen on reacting with metals? और आप पुराने चैप्टर से याद कर रहे हैं आपको तो बता भी सकते हो कि और भी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हाइड्रोजन बनाते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करके। ऐसे कौन सी चीज होती है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं? सेकंड चैप्टर। Yes. Which things react with metals to give hydrogen gas? सबसे पहली एक्टिविटी सेकंड चैप्टर क्या था? जिंक पैलेट्स को किसमें किया था हीट? यस, एनीवन? मेटल को किसके साथ हीट करने पर हाइड्रोजन गैस बन रही थी, वो जो पॉप साउंड वाला था? जल्दी बताओ, कितनी देर लगा रहे हो? अभी अभी पढ़ा है आपने 1-2 महीने पहले। मेटल को किसके साथ रिएक्ट किया था? मेटल को किसके साथ रिएक्ट करा था तब हाइड्रोजन गैस बनती है? इन्वर्टेड फनल से उसमें लेते हैं तब। यस मैम एक बार रिपीट करना, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। बेटा, एक टेस्ट ट्यूब है, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट था जिसमें इन्वर्टेड डिलीवरी ट्यूब से ये जो गैस बन रही थी इसको दूसरी वाली में ले रहे थे, और यहाँ पे एक पूरा टब रखा हुआ था, उस टब में वो गैस आ रही थी, और फिर उस गैस से आप जब बर्निंग कैंडल ला रहे थे तो पॉप साउंड से बुझ रही थी। ये कौन सी गैस थी और ये कौन सी एक्टिविटी थी जिसमें जिंक पैलेट्स किसके साथ बर्न करवा रहे थे हम? जिंक पैलेट को हाइड्रोजन गैस तो बन रही थी, जिंक पैलेट्स के साथ टेस्ट ट्यूब में और कौन सा मटेरियल था ये पूछ रहा है। मेटल के साथ जिंक पैलेट को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे थे यहाँ पे हम? जिंक विद जिंक मेटल किसके साथ रिएक्ट हो रहा था यहाँ पर? जिंक। हाइड्रोजन कब बन रही थी? जिंक किसके साथ रिएक्ट होता है जब? यस, dilute HCl, acids, zinc when metals when react with acids gives hydrogen gases. इतनी जल्दी अगर आप भूलोगे ना तो फिर तो आपकी हो गई 10th। अभी तो आपको अपने ही सेकंड चैप्टर का याद नहीं आ रहा है। रिएक्शन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हीटिंग इथेनॉल at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid result in the dehydration of ethanol. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन अगर करवाओगे, हीट करवाओगे उस इथेनॉल को 443 केल्विन पर, ठीक है, तो इथेनॉल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी दे सकती है अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में उसे हीट करा जाए। तो ये फिर दोबारा इथेनॉल का सेकेंड रिएक्शन है जहां पर इथेनॉल को किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इथेनॉल ली है बहुत सारी, अब इस इथेनॉल में साइड में से बहुत सारा क्या डाला है? H2SO4 डाला है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड, वो भी डाइल्यूटेड नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड डाला है साइड से, बिल्कुल साइड से डाला है, और ये इसमें मिक्स हुआ है। तो ये इसके अंदर मिक्स होके क्या बना लेगा? इट विल फॉर्म द न्यू कंपाउंड विच विल बी इथीन। ये किसमें चेंज हो जाएगी? अनसैचुरेटेड में 2 कार्बन की अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना देगा, डबल बॉन्ड वाला इथीन बना देगा। क्या बना देगा? इथीन। इथेनॉल से क्या बन जाएगा? इथीन।
यानी सारी ऑक्सीजन आ रही है, हाइड्रोजन, ये OH ग्रुप दोनों हट जाएगा, वाटर बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से भी हट जाएगा, इट विल बी फॉर्म्ड इथीन। क्लियर हो रहा है? यस मैम। तो ये होता है रिवर्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन हटा रहे हैं, इवन हाइड्रोजन्स भी हटा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं यहाँ से, पूरा OH ग्रुप पूरा जा रहा है, यहाँ से एक H जा रहा है, H2O निकल रहा है, और ये CH2 बच रहा है, CH2, और इधर भी CH2, ये दोनों किसके साथ बॉन्ड हो गए हैं? इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लग गया है? डबल बॉन्ड, इथीन बन गया है। क्या बन गया है? इथीन। क्लियर हो रहा है? क्या रिलीज हो रहा है बाय प्रोडक्ट? वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने जब वाटर हटाया तो वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किसकी तरह काम कर गया है यहाँ पर? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऐसा एजेंट जिसने रिमूव करता है, जो वाटर रिमूव करता है किसमें से? इथेनॉल में से। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसकी तरह काम करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। क्या रिलीज कर रहा है? वाटर रिलीज कर रहा है ना। तो डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? वाटर। हाइड्रेट वर्ड क्या होता है? वाटर के लिए होता है। तो डिहाइड्रेट मतलब रिमूविंग वाटर, रिमूविंग वाटर। कंफ्यूज मत करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 और K2Cr2O7 है। हाइड्रोजन ऐड करने वाले निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट हैं। तीन चीज पढ़ी है आज हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7, हाइड्रोजन ऐड करने वाले एडिशन रिएक्शन वाले निकल और पैलेडियम, और तीसरे ये H2SO4 हॉट कंसंट्रेटेड। ये क्या करता है? वाटर रिमूव करता है। क्या करता है? वाटर रिमूव करता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा हमने? सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा कि CH4 में, मीथेन में क्लोरीन अगर जुड़ जाएगी सनलाइट की प्रेजेंस में तो वो क्या बन जाएगा? CH3Cl, यानी क्लोरोमीथेन। ठीक है, और HCl, क्लोरोमीथेन और HCl। हाउ डू अल्कोहल इफेक्ट्स बीइंग? अल्कोहल हमारे बॉडी में अगर जाती है, मैंने कहा नशा होता है, पर वो कैसे होता है, क्या कहाँ पर असर करती है? जब लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल को आप कंज्यूम करते हो तो आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कम होने लगती हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्लो होने लगता है, इसकी वजह से लैक कोऑर्डिनेशन का कमी हो जाती है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाती है, एंड ड्राउजीनेस, लोअरिंग द नॉर्मल इनहिबिशंस, एंड फाइनली स्टूपर, मतलब आप लड़खड़ाने लगते हो। इंडिविजुअल में फील रिलैक्स बट नॉट रियलाइज द सेंस ऑफ जजमेंट, ना कुछ जज कर पाता, ना कोई टाइमिंग का सेंस होता उसको, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी हट जाता है, सीरियसली वो बीमार हो जाता है। अनलाइक इथेनॉल, इनटेक ऑफ मिथेनॉल आल्सो कॉजेज डेथ। अगर इथेनॉल नहीं है तो मिथेनॉल पीने से काम चलेगा, सैनिटाइजर पी लो, तो ये सब कुछ नहीं होता, इससे भी क्या हो सकते हैं? मर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे थे, उनको अल्कोहल नहीं मिल रही थी, सरकार ने अल्कोहल बंद कर दी थी, तो सैनिटाइजर पी रहे थे और वो अस्पताल पहुंच गए थे, क्योंकि सैनिटाइजर में क्या था? सैनिटाइजर में मिथेनॉल होती है, ठीक है, स्पिरिट होती है, वो खराब होती है। इसको बायो की लैंग्वेज में, लैब की लैंग्वेज में स्पिरिट कहते हैं। स्पिरिट भी नहीं पी सकते आप, स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर पियोगे तो डेथ हो जाएगी, बिकॉज ये लीवर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्शन करती है, इट कॉजेज रिएक्शन विद लीवर। मिथेनॉल रिएक्ट रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स, प्रोटोप्लाज्म सेल्स का पूरा जम जाता है, कोएगुलेट यानी क्लॉट हो जाता है। जैसे कि एग, जब हम एग को जब वो करते हैं, फ्राई करते हैं तो ऑमलेट बनती है ना, वैसे ही बन जाते हैं हमारे सेल्स के अंदर जाके। मिथेनॉल आल्सो इफेक्ट ऑप्टिक नर्व, हमारी आंखें खराब हो जाती है मिथेनॉल पीने से, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इथेनॉल इंडस्ट्री, अल्कोहल में इथेनॉल होता है? अल्कोहल तो नॉर्मल इथेनॉल है, पर मिथेनॉल में भी, मिथेनॉल भी तो एक प्राइमरी अल्कोहल है। 1 कार्बन की अल्कोहल क्या होगी? 1 कार्बन की अल्कोहल मिथेनॉल है, समझ रहे हो? 1 कार्बन वाली अल्कोहल को मिथेनॉल कहेंगे, वो 1 कार्बन से बनी है, और 2 कार्बन की अल्कोहल को क्या बोलेंगे? इथेनॉल। इथेनॉल। दोनों से प्रॉब्लम होगी, मिथेनॉल से ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मिथेनॉल से ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सैनिटाइजर में मिथेनॉल होती है। सैनिटाइजर किसमें होता है? मिथेनॉल होती है उसमें। ओके मैम। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूसेस इंडस्ट्रियल यूज, और अगर इथेनॉल जो बना रहे हैं हम इंडस्ट्री से, उसका मिसयूज करने के लिए, मतलब जो इंडस्ट्री में इथेनॉल बन रही है वो लोग तो सोच रहे होंगे अरे भाई मैं तो बिल्कुल, मेरे तो चारों तरफ ही इथेनॉल है, अब तो मेरे तो मजे आ गए, और मेरे को तो कहीं पे भी मैं इकट्ठा कर लूं, इसे लेके चले जाऊं अपने घर पे। तो इस वजह से क्या होता है, जब वो बनाई जाती है इथेनॉल, तब उसमें थोड़ी सी मिथेनॉल
जो मतलब मिला दी जाती है। ऑलरेडी उस मशीन में ऐसा होता है कि वो उसमें मिथेनॉल मिला देती है ताकि कोई लोग इसे पिए ना, क्योंकि उन्हें अपनी जान का तो खतरा रहेगा ही, तो इसीलिए वो उसको फिर पीते नहीं है, बिकॉज उसमें थोड़ा सा जहर मिला दिया जाता है मिथेनॉल नाम का। डाइज आर ऑल्सो एडेड टू कलर, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल यूज वाली हैं। ये वो वाली अल्कोहल्स नहीं है जो डायरेक्टली ड्रिंक्स के लिए यूज की जाती हैं, क्योंकि उनमें नहीं मिलाई जाती मिथेनॉल। पर जो लैब्स में आती हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज में आती हैं, जो बहुत लार्ज स्केल पे बनती हैं, उनमें मिथेनॉल मिलाई जाती है। तो डाइज आर ऑल्सो एडेड, कलर्स और ऑल्सो एडेड, अल्कोहल ब्लूइश दिखती है इस वजह से उसके अंदर। आप जब ये देखोगे तो ये थोड़ी सी ब्लूइश भी दिखेगी स्पिरिट, तो ये इसीलिए क्या कि ये बताने के लिए कि ये पीने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई मिथेनॉल इज एडेड टू द लिटिल अमाउंट टू द इथेनॉल फॉर इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज में थोड़ी सी मिथेनॉल क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि मिथेनॉल इज व्हाट, इट इज वेरी डेडली। मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनल, लीवर में जाकर वो ऑक्सीडाइज हो जाती है मिथेनॉल के अंदर, जो कि क्या कर देता है, सेल्स को मार देता है, लीवर को खत्म कर देता है। बिल्कुल क्लियर हुआ? मैम एक जिंक में मेथनॉल मतलब लीवर को खत्म कर देता है? करेगा, जितनी अमाउंट में पियोगे उतने में उतना डैमेज होगा। पूरा तो लीवर खत्म नहीं होगा, पर एटलीस्ट आधा अधूरा तो खत्म होगा। अल्कोहल एज अ फ्यूल, अगर हम अल्कोहल को फ्यूल की तरह यूज करें, शुगर केन के प्लांट है जिनमें हम सनलाइट के कन्वर्टर्स हैं, वो के शुगर तो बना ही रहे हैं शुगर के प्लांट्स, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस से शुगर बनती है। पर शुगर केन का जो जूस है वो मोलेसिस जूस का अगर हम फर्मेंटेशन कर दें, उसमें अगर हम यीस्ट लगा दें, तो वो हमें अल्कोहल और इथेनॉल बना के देती है। ठीक है, जो पीने वाली अल्कोहल है उनकी बात आ गई अब यहाँ पर। ठीक है, जो गन्ने का जो वो मतलब रस निकालने के बाद गन्ने का जो वो खोल सा बच रहा है, उसको अगर हम उसको ही उसी का उसको पानी में गला दें और उसके ऊपर यीस्ट का पाउडर लगा दें, पूरा उसको सड़ने के लिए एक जगह पूरा भर दें, मतलब क्लोज्ड वेसल में, तो कुछ दिनों के बाद उसमें क्या बन जाती है, अपने आप अल्कोहल बन जाती है। और अगर इस अल्कोहल को फ्यूल की तरह हमें यूज करना है, तो इस अल्कोहल को ही फिर थोड़ा सा पेट्रोल में ऐड करके सिंपल नॉर्मल फ्यूल की तरह, क्लीन फ्यूल की तरह काम किया जा सकता है। गिव राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बर्निंग में सिर्फ यही देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लीन फ्यूल है क्योंकि इससे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स नहीं मिलते। इट डज नॉट गिव्स पॉल्यूटेंट्स नहीं देती ये वाली अल्कोहल, तो ये वाली अल्कोहल फ्यूल की तरह आराम से काम आ सकती है। क्लियर हुआ? यस मैम, हमारी हिंदी की क्लास आ गई। प्रॉपर्टीज अब इथेनोइक एसिड की क्या क्या है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम हिंदी की क्लास आ गई। ठीक है, तो अब मैं आपको वो कर रही हूँ, हिंदी की क्लास आप कर दो अटेंड, मैं इसको अब यहीं पे एंड करती हूँ, आगे हम कल समझेंगे। ठीक है, ये पूरी इक्वेशंस आपको लिखनी है, दिस इज ओनली और होमवर्क, सारी इक्वेशन आपको लिखनी है। विद दिस आई विल फिनिश एंड द टुडेज सेशन। थैंक यू।